Good morning. Today we start the chapter 3, video 3 with the topic nomenclature of the element with atomic number greater than 100. The element beyond the uranium is known as transuranium elements and beyond the fermium is known as transfermium element. It was decided by the IUPAC that until a new element discovery is proved, मीन्स जब तक कि उस एलिमेंट की डिस्कवरी पूरी तरह से प्रूव नहीं होती है एंड इट्स नेम इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, और जब उसके नाम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तब तक ए सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर बी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर, तब तक IUPAC ने एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर बनाया है जो कि उनके एटॉमिक नंबर से रिलेट करता है। और एटॉमिक नंबर से रिलेट करने के लिए यूजिंग द लैटिन वर्ड्स ऑफ देयर नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे नील फॉर जीरो, जीरो अगर हमारा न्यूमरिक वैल्यू है तो उसके लिए हम नील यूज़ करेंगे, वन है तो उसके लिए अन यूज़ करेंगे, टू है तो बाई यूज़ करेंगे। The Latin word for various digits of the atomic number are written together in the order of which makes the atomic number and em is added at the end. मीन्स हमारे जो भी एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम उसके नेम या एब्रीवेशन का यूज़ करेंगे और लास्ट में उसके नाम के लास्ट में हम em का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 101, 101 मीन्स वन के लिए हम अन का यूज़ करते हैं, जीरो के लिए नील का यूज़ करते हैं एंड अगेन 101 है अगेन वन, दैट मीन्स अन एंड लास्ट इज द em. इट मीन्स अन नील अनियम, दैट इज द nomenclature of the atomic number 101 element. For example atomic number 5, 1 means un, 0 means nil, 5 means pent and last is the em, unnil pentium. That is the name of the atomic number 105 element. तो इस तरह से हम इस नोमेनक्लेचर को, इन रूलों को ध्यान में रख के हम किसी भी एलिमेंट का IUPAC नाम लिख सकते हैं विच इज़ मोर देन 100. नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू SP, D एंड F ब्लॉक on the basis of electronic configuration. Electronic configuration means the distribution of electron in their orbit or orbitals, that is known as electronic configuration. इस electronic configuration के बेस पे हम periodic table को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: S block element, P block element, D block element and F block element. In F block element, the element in which the last electrons enter the S subshell of their outermost energy level. आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल में लास्ट इज जो हमारा शेल है उसको हम बोलते हैं आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, और उसके अंदर जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो उसको हम लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. इसके अंदर हमारे ग्रुप नंबर 1 एंड 2 लिए गए हैं जिनका कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1 एंड 2. दैट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ S block element. इसमें द ग्रुप नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज alkali metal एंड सेकेंड आर नोन एज alkaline अर्थ metals. इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं S block की. दे आर मोस्टली द मेटल्स आर द सॉफ्ट मेटल with low melting point and boiling point, highly reactive हैं, so they do not occur in native state. They have low ionization enthalpy. Low ionization enthalpy means they form a positive ion. It means the energy required for the losing of the electron from its ground state is known as ionization enthalpy. It means ये एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं एंड पॉजिटिव आयन बनाते हैं. सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. दे जनरली फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. दे आर ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स दे हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स. They show the oxidation state. Oxidation state means the valency of that element. +1 for the alkali metal and +2 for the alkaline earth metal. That is all about the S block element जिसके अंदर ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को लिया गया है.
Second is the p block element, the element in which the last electron enter the p subshell of their outermost energy level is known as p block element, and the general electronic configuration of these element is ns2 and p126. This block is situated in the extreme right of the periodic table, where the group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are included in this energy level. Characteristic क्या है? They form the ionic compound. They show variable oxygen. In moving from left to right in a non-metallic character is increases, and moving down in the group metallic character is increases. The reactivity is very low and most of them are non-metals. At the end of each period, हम पीरियड जो हमारे थे 7 पीरियड, उसके लास्ट में हम जो पीरियड का लास्ट वाला ग्रुप देखते हैं, इन विच एलिमेंट्स, that is the noble gas element in which the electronic configuration is ns2 and p6, means the element is follow the octet rule. Their in last orbit 8 electrons are present, so they are known as noble gas element, and most of them are highly electronegative element. Highly electronegative means they form the negative ions. नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इज एंटर इन द पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल मीन्स इट इज़ नॉट द आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल, बट आउटर से अंदर वाला शेल, दैट इज़ नोन एज पेनल्टीमेट शेल. और उसके डी ब्लॉक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, सो इट इज़ नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज n-1 d1 to 10 and ns 0 और 2. इसमें ग्रुप नंबर 3 to 12 को शामिल किया गया है. करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो हैं, they are all hard metals with high melting point and boiling point. Their compounds are generally paramagnetic in nature. Paramagnetic means when we are doing the electronic configuration of these elements, in the outer shell the electrons are present in the unpaired form. It means it is paramagnetic in nature. they mostly form the colored ions, means इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके अगर हम आइंस को देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, आयरन है, दे फॉर्म द कलर्ड आयन एंड एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आयरन इज़ +2 +3, कॉपर इज़ +1 +2. इस तरह से दे शो दे वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दे आर ऑफ जनरली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. जनरली इनको हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं. दे फॉर्म द आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं. एंड दे फॉर्म द एलॉय. एलॉय आर ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स, एंड दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे हीट एंड इलेक्ट्रिक, बिकॉज दे आर जनरली दे आर ए मेटल, सो दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को भी लिखा गया है, बट दे डू नॉट एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज के ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि इनका जो आउटर शेल है, डी सब शेल है, इट इज़ फुल फिल्ड होने की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं. नेक्स्ट हमारा लास्ट ब्लॉक है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ सब शेल ऑफ द एंटी या प्री पेनल्टीमेट शेल. प्री पेनल्टीमेट मीन्स पेनल्टीमेट से भी अंदर वाले शेल को हम प्री पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इट इज़ n-2 f1 to 14, n-1 d0 या 1 और ns2. इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं.
इन ब्लॉक में हमारी जो पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 लाइनें रखी गई हैं, दैट इज़ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें फर्स्ट लाइन को हम बोलते हैं क्योंकि वो हमारा लेंथेनॉइड्स के लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है वो लाइन, सो दैट इज़ नोन एज लेंथेनॉइड्स। एंड सेकेंड लाइन एक्टिनाइड के बाद में है तो दैट इज़ नोन एज एक्टिनॉइड्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, एंड दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड विच आर मोस्टली देम आर कलर्ड होते हैं। तो ये तो थे हमारा डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा कुछ और हैं। इससे पहले हमारे एस पी डी एफ ब्लॉक से पहले एलिमेंट को हमने 4 टाइप्स में डिफाइन करा था। One is the representative element, noble gas elements, transition element and inert transition element। तो इसके अंदर नोबल गैस कौन से, मीन्स ग्रुप नंबर 18 इज़ नोन एज द नोबल गैस एलिमेंट, जिसमें कि हमारा नोबल गैस या इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट ऑर्बिटल जो है फुलफिल्ड होता है, इसलिए इनको हम नोबल गैस कहते हैं। The element of group first, group second and group number 13 to 17 is known as representative element। Group number 3 to 12 that is the transition element या D block element जो थे उनको हम transition element कहते हैं because the electrons enter into the penultimate shell, so they are known as transition element। And last one is the lanthanoids और actinoids या जिनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कोई एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, जो है हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स बियॉन्ड द यूरेनियम जिनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से एस पी डी एफ के अलावा हम इन एलिमेंट को 4 टाइप्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। नोबल गैस एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो जनरल क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मोस्टली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स हैं और जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, जिनके अंदर की मेटल की प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ए मेलेबल, डक्टाइल, लस्टरस, हाई डेंसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेजेंट। मोस्टली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट द मरकरी। Non-metals are present on the right hand side of the periodic tables. They are solid, liquid and gas. In both all the 3 states are present. Neither malleable nor ductile, poor conductor of heat and electricity। Non-metal और metal को separate करते हुए हमारी कोई एक sharp line नहीं है, but एक zigzag line is present between the silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium। ये जो एलिमेंट हैं जो इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हैं, जिग-जैग मोशन में है, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। अब हमारा आता है कि अगर हमको किसी का एटॉमिक नंबर दिया गया है, हाउ वी फाइंड आउट द एटॉमिक ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ दीज एलिमेंट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड के लिए तो सिंपल है कि पीरियड हमारा क्या है, जो भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसी को हम उसका पीरियड डिफ़ाइन कर देते हैं। लेकिन ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए हमको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर जा रहा है वही उसका ग्रुप नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में एंटर हुआ है, दैट इज़ द ग्रुप नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर शेल। तो अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स उसका ग्रुप नंबर है 1। अगर उसके पास 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जैसे 4, 2, तो उसका ग्रुप नंबर है 2। और एस ब्लॉक में हमारे ये केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2। यदि उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट मीन्स ग्रुप नंबर 1।
आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट मीन्स उसका ग्रुप नंबर है 2. फॉर ए पी ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर फाइंड 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल. 10 प्लस फॉर एग्जांपल जैसे 13 ग्रुप में है तो वैलेंसी शेल में लास्ट में अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट में आएगा 3, इट मीन्स इट इज़ 13, तो उसका ग्रुप नंबर है 13. फॉर एग्जांपल जैसे हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 7, इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 5, 7 हो गया. तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसके पास, 5, तो 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15. नाइट्रोजन हमारा पी ब्लॉक में आता है, इसका मतलब नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है इसका 15. तो इस तरह से हम किसी भी तरह से इसके ग्रुप नंबर को, कौन से पी ब्लॉक वाले को, डी ब्लॉक वाले के लिए है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस डी सब शेल, मीन्स n माइनस 1 डी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल, और लास्ट का जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे स्कैंडियम जिसका कि एटॉमिक नंबर है 21, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो होगा 2 8 8 2 8 9 2 2 8 9 2 दैट इज़ द एटॉमिक नंबर 21. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF से करें तो डी सबशेल हमारा थर्ड वाले ऑर्बिट में आता है, जिसके पास की डी के पास है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 प्लस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दैट इज इक्वल टू 3, इट मीन्स इसका ग्रुप नंबर है 3. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के पास किस एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कितना है. हम इन रूल को फॉलो करके पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है पीरियडिक ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. पीरियडिक ट्रेंड्स का मतलब है कि किस तरह से ग्रुप एंड पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम. So let us now we study the variation of some of the atomic property in the periodic table. Now we start the first property is the atomic radii. Atomic radii means it is defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing the electrons. means कि न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई. हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. बट हम उसका रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल, बहुत साइज़ बहुत छोटा है. साइज बहुत छोटा होने की वजह से फ्रॉम वन size of an atom also changes from one bonding state to the another due to the above factor of the atomic size is expressed in different types of radii. क्योंकि उसका साइज़ जो है जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसका साइज़ भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम उसके एटॉमिक रेडियाई को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो साइज़ इज़ एक्सप्रेस्ड, इसलिए हम एटॉमिक रेडियाई को 3 डिफरेंट टाइप में डिफाइंड करा है. वन इज़ द कोवेलेंट रेडियाई, second is the van der Waals radius and third one is the metallic radius. What is covalent radius? Covalent radius means it is equal to the half of the distance between the of the two nuclei held together by the purely covalent bond. means जो covalent bond हमने 10th में स्टडी करा था कि how we make a covalent bond, उन covalent bond में दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ कर दें, दैट इज़ नोन एज कोवेलेंट रेडियस. सेकेंड है हमारा van der Waals रेडियस. इट इज़ ऑल्सो द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम.
कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद 2 न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, 2 पास के एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसका कि हम हाफ कर दें, दैट इज़ नोन एज वॉन डर वॉल रेडियस, जिसको कि देखो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें देखो डायग्राम में ये है हमारा कोवेलेंट रेडियस, 2 एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज कोवेलेंट रेडियस, ये जो है, और 2 एडजेसेंट एटम के बीच का ये है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ये जो था ये तो था हमारा कोवेलेंट रेडियस, और इन दोनों के बीच का ये एडजेसेंट एटम है, इनके बीच का है, इसको हम बोलेंगे वॉन डर वॉल रेडियस। थर्ड हमारी है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस इट इज़ रिलेटेड टू द मेटल, so it is known as the metallic radius. Half of the internuclear distance between 2 adjacent atom in the metallic lattice means 2 metal के internuclear distance का half, that is known as the metallic radius. And metallic radius is always larger than its covalent radius because metallic bond is weaker than the covalent bond. Therefore 2 atoms held by covalent bond are closer to each other, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है, आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपस में क्लोज टुगेदर होते हैं, जबकि मेटेलिक बॉन्ड हमारा लार्जर बॉन्ड होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड एटॉमिक रेडियाई या बॉन्ड कम पाया जाता है।